Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 8 January 2021 and I am teaching you chapter number 6 and name of the chapter is Natural Calamities. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you natural disaster, that is drought. So what is drought? When a particular area does not receive a rainfall for a long period of time. Okay, when a particular area does not receive a rainfall for a long period of a time and there is scarcity of water due to hot weather, so what we say that area is affected by drought. ठीक है, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ बहुत दिनों से बारिश ना, बहुत समय से बारिश ना हो रही हो, ठीक है, और पानी की बहुत कमी हो जाती है ड्यू टू हॉट वेदर आल्सो, सो वी से दैट एरिया इज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट. After that student, we discuss what are the causes of the drought, that is location. Maybe that area is very far away from the water bodies like river, lake, sea or oceans, and this is also the reason. Some part it is given in India, area of Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh are away from natural resources of water, due to which the area tend to receive little rainfall throughout the year. But every year you will see the situation of flood arises in Bihar. Whether the amount of rainfall in Bihar is less, so you will think that when rainfall is so less, then how every year flood come in Bihar? So the reason is that Kosi river, the origin of this river is in other country, that is Nepal, and the water of this river enter in Bihar. And due to this river, every year floods come in different part of the Bihar. Then what is the second reason? We discuss the cause of drought is deforestation, means cutting of the trees. When the number of trees are very less, then the process of transpiration, this process is in the plants, the rate of transpiration is very less, and this is also the reason that area receive less rainfall. And what is transpiration? Transpiration is the process in which the plants lose water from the leaves. In a leaf you will see a tiny pores that are known as stomata.
So from this the leaf lost the water. So when the number of trees are very less in that area, the rate of transpiration is less, and this is also the reason that there is a less rainfall in this area. After that we discuss the effects of a drought. What happen at the time of drought? Drought मतलब सूखा पड़ जाना, ऐसा एरिया जहां बहुत समय, लंबे समय से बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही है, या तो बहुत लिटिल रेनफॉल हो रही है या तो हो ही नहीं रही है. सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट? द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑल द पाउंड्स, लेक, रिवर, वाटर ड्राई अप, एंड इवन देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी हो जाती है. इवन वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर भी एकदम लेस हो जाता है फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो द कंडीशन अराइजेस दैट देर इज a scarcity of water and there is no drinking water for the animals and human beings. Then the next thing which we discuss, when there is no rainfall in that area, then it is possible that the crops can grow. So when there is no crops, so there is no food for the cattle also. Cattle means जो farmer अपने संग animals को, जानवरों को रखते हैं, so उनके लिए भी खाना नहीं होता है, और भूख के मारे वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं. They start dying. And the worst condition means सबसे बुरी हालत किसकी होती है? That is of the farmers at the time of drought. Next हमने डिस्कस किया था, and if such type of a situation occur in any area, then the whole nation also suffer, as there is a lack of vegetable and fruit, and even the rate of the things also increases. So, and next thing which we will discuss in this, that how we can control the drought. So planting more and more trees, and planting tree is known as afforestation. Planting of the tree is known as afforestation. दिस विल ब्रिंग, और जब पेड़ बहुत ज़्यादा लगेंगे बेटा, पेड़ ज़्यादा होंगे तो इनसे क्या होगी, रेनफॉल बहुत अच्छी होगी. क्योंकि मैंने बोला ना कि जिन एरियो में ट्रीज बहुत लेस होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट से, वो बहुत लेस होता है. दिस इज आल्सो द रीजन फॉर लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल इन दैट एरिया. इफ वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, then because the trees help us to bring the rain. ठीक है, जो हमारे पेड़ होते हैं इनकी वजह से भी रेनफॉल होती है. क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे, क्योंकि वाटर इवापोरेट होके जाएगा, वही कंडेंस होगा, उससे क्लाउड्स बनेंगे और वही पानी फिर नीचे आता है. तो जब पेड़ इतने लेस होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जब इतना लेस होगा, सो इन दैट एरिया there is no rainfall or very less rainfall. That is the reason, student, trees help to bring the rain, and if you plant more and more trees, then there is a good rainfall in that area. And next thing we discussed, that encourage water harvesting plants. So water harvesting plants गड्ढे करते हैं, उसमें पिबल, स्टोन्स ये सब डालते हैं, सैंड भी डालते हैं, एंड व्हेन, और इससे क्या होता है, वी इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर एट द टाइम ऑफ मानसून सीजन, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ रेनफॉल. सो दिस वाटर इज ऑब्जॉर्ब इन दिस, एंड दिस वाटर देन गोज डाउन and increase the level of underground water, and this water can also be used for the drinking purpose also and for the cultivation. जो खेतों की सिंचाई करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन. ठीक है,
सो दिस वाटर इज यूज फॉर दैट पर्पस आल्सो। आप जाओगे पंजाब में, आप जाओ वहाँ देखोगे मैक्सिमम फील्ड्स में आपको ट्यूबवेल्स देखने को मिलेंगे, एंड दे आर यूजिंग दिस वाटर फॉर कल्टिवेशन आल्सो। So these things we have discussed in the previous video. Now after that, earthquake. So first of all, note down the definition of earthquake. Disturbance deep inside the earth surface. Disturbance deep inside the earth surface that causes sudden shaking of the surface is called an earthquake. Is called an earthquake. So this is a definition of the earthquake. See, disturbance deep inside the earth that causes sudden shaking of the surface. ठीक है, पूरा जो अर्थ का सरफेस है वो शेक करने लगता है। ठीक है, तो दैट इज दिस कंडीशन। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। नाउ what are the reason for the earthquake? So to understand this in a very simple way, why, और earthquake को बेटा हिंदी में कहते हैं भूकंप आ जाना, जहाँ पूरा लैंड जो है, सरफेस जो है शेक करने लगता है, हिलने लगता है। ठीक है, तो what is the reason for the shaking of the earth? To understand this, how the earthquake comes, to understand this, let first understand the different layers of the earth. Okay, now see, it's not a complete circle. Okay, wait. Okay, now let's understand the different layers of the earth. We all know that student, we are living on the surface of the earth. ठीक है, हम सबको पता है कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं। एंड इज द लैंड ऑन इज सेम? नो, समवेयर वी फाइंड माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट, plateaus and water bodies. So the surface of the land is not same. Okay, now what is the reason for the earthquake? To understand this, student, first of all we understand the different layers of the earth. See, this is the first layer on which we live.
हमने बोला ना हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो दिस इज द लेयर ऑन विच वी लिव, दैट इज नोन एज क्रस्ट। This layer is known as crust on which we are living. Okay, right? Then this is the second layer. This layer is known as mantle. Then this is the first layer on which we live. Now one more layer. This is known as outer core, and there is one more layer. This is known as inner core. So these are the 4 layers of our earth. So one by one I explain you so that you will understand the topic clearly. See, the first layer, we are living on the surface of the earth. हम कहाँ पे रहते हैं बेटा? अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द एयर एंड दिस लेयर इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। इसे क्रस्ट कहते हैं। जो लैंड है फॉर्म है ना आपके, जो आप लोग लैंड देखते हो, मैंने बताया ना अभी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए, इज ऑल द लैंड इज द सेम? नो, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यूज हैं, वाटर बॉडीज भी हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लेयर ऑन विच वी लिव, दैट इज द क्रस्ट, ठीक है। मेंटल, अब ये जो सेकेंड लेयर है, दिस इज मेड ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये सेकेंड लेयर जो है ये रॉक से बनी हुई है इस लेयर में, ठीक है। क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल की लेयर है, इसमें सारे रॉक्स हैं, ठीक है। रॉक से बनी हुई लेयर है ये। फिर आप आ जाओ आउटर कोर, यहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आउटर कोर में, आउटर कोर, ये जो दिस इज आउटर कोर, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये जो आपकी लेयर है, दिस इज आउटर कोर एंड हियर द टेम्परेचर इज वेरी हाई। जितने भी रॉक्स होते हैं और जितने भी मेटल्स हैं, मेटल ये सब क्या है? अर्थ में ही गड्ढे करके डिग करके ना हम लोग में से मेटल्स निकालते हैं, ठीक है। इनसाइड द अर्थ ही ये सारी चीजें मिलती हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं। तो यहाँ ये वाली जो कोर है बेटा, ये आपकी जो आउटर कोर है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे सारे रॉक्स, मेटल्स, ऑल द थिंग्स आर इन द लिक्विड फॉर्म। सारी चीजें किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इज इट क्लियर? यहां सारी चीजें किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। जितने भी रॉक्स हैं, यहाँ इतना हाई टेम्परेचर है इस लेयर में, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जितने भी रॉक्स हैं, चट्टाने और जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर इन द लिक्विड फॉर्म, जिसे मैं मैग्मा बोलते हैं या लावा भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर होने के कारण ऑल द रॉक्स एंड मेटल्स आर इन द लिक्विड फॉर्म। और सबसे जो अंदर की जो कोर है, जो अर्थ की, जिसे इनर कोर बोलते हैं, ये बहुत हार्ड है और यहाँ भी टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है। तो आप लोग को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं वो वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, ठीक है। देखो जैसे 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर और इनर कोर। सो बाहर से अगर आप अपनी अर्थ देखोगे तो ये आपकी कूल है, लेकिन अंदर की ओर आप जाओगे तो टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है।
देन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, ये जो आपका इनर कोर है इसका भी बहुत हाई टेम्परेचर है, ये सबसे हार्ड कोर है आपकी, इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। जो आउटर कोर है इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। यहाँ तो सारे रॉक्स, जितने भी रॉक्स हैं और इवन जितने भी मेटल्स हैं सब लिक्विड फॉर्म में है। आप लोग ने सुना होगा ना, कहीं कहीं वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो में से बहुत सा लावा निकलता है। इज इट क्लियर? तो ये यही लेयर है, यही का लावा, मैग्मा जो है यही का लावा, वॉल्केनोज जब फटते हैं तो यही का निकलता है। क्यों? क्योंकि ये आउटर कोर में सारे रॉक्स, जितने भी चट्टाने हैं और जितने भी मेटल्स हैं, ये सारे के सारे किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आगे चीज, ये सारे के सारे किस फॉर्म में? दे ऑल आर इन द लिक्विड फॉर्म। और जो आपकी अपर लेयर है, ये क्रस्ट जिसपे हम रह रहे हैं, यही आपकी क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये क्या है आपकी? ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, सो ये एक कोई सिंगल प्लेट नहीं है, कई प्लेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्लेट है, कहीं सिंगल प्लेट नहीं है। ठीक है, तो कई प्लेट्स हैं ये टेक्टोनिक की। यही जो आपकी अपर लेयर है, अपर लेयर जो क्रस्ट जिसे मैंने बताया, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं। अब देखो, वन टाइम और रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। ये इनर कोर है, यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये सबसे हार्ड कोर है। उसके बाद ये आपकी आउटर कोर है। हियर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, ऑल द रॉक्स एंड मेटल्स आर इन द लिक्विड फॉर्म। फिर ये आपकी मेंटल है, मेंटल लेयर है, ये रॉक से बनी हुई है। ठीक, और उसके बाद सबसे रियली फर्स्ट लेयर जो मैंने बताई थी, क्रस्ट, जिसके सरफेस पे हम लोग रहते हैं, जिसके सरफेस पे हम लोग रहते हैं। सो अब तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अर्थ जो अंदर से जो है बहुत हाई टेम्परेचर है। जो अर्थ के अंदर के पार्ट्स हैं, जो जैसे इनर ले लो और आउटर को, यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है। इज इट क्लियर? अब देखो, ये वाली कोर जो मैंने बताई, इनर कोर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और ये सबसे हार्ड कोर है। इज इट क्लियर? अब ये जो तुम्हारी आउटर कोर है, इसमें सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, जिससे लावा बोलते हैं या मैग्मा भी बोल सकते हो। यहाँ हाई टेम्परेचर होने के कारण जितने भी रॉक्स पार्टिकल्स हैं, चट्टाने हैं और जितने भी मेटल्स हैं, वो सब क्या? लिक्विड फॉर्म में है। अब जो ये मेंटल की लेयर है, दिस मेंटल लेयर, ये सेकंड वाली लेयर की बात कर रहे हैं। जो मेंटल की लेयर है, ये इसी के ऊपर तैरती रहती है, मूव करती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये लेयर किस फॉर्म में है? आउटर लेयर, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये पूरी लिक्विड फॉर्म में। जैसे वाटर में बोट्स हैं, शिप है, स्टीमर है, ये चलते हैं ना, क्योंकि वो डूबते नहीं है, लकड़ी पानी में डूबती नहीं ना है, तो उस पर तैरते रहते हैं। इसी तरह ये क्या है, जो सेकंड लेयर जो आपकी आउटर लेयर है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और उसके ऊपर जो मेंटल की लेयर है, ये इसी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर मूव कर रही है, बहुत स्लोली स्लोली, नॉट मूविंग फास्ट, बहुत हल्की हल्की मूवमेंट रहती है। अब ये भी मूव कर रही है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स अब इसके ऊपर है। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब इसके ऊपर ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट जिसपे हम लोग रहते हैं, द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग। तो ये प्लेट्स क्या मैंने बोली, ये सिंगल प्लेट्स नहीं है, ये कई प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स भी मूव कर रही है, क्योंकि दिस इज आउटर कोर, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके ऊपर मेंटल है, लिक्विड के ऊपर ये मूव कर रही है, और मेंटल के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो इनकी भी मूवमेंट हो रही है, बहुत स्लोली हो रही है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मूव करते करते एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अंदर की जो इनर आउटर कोर क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, तो या तो ये आपस में कभी टकरा जाती हैं,
या आपस में रब करती हैं, रगड़ाती हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स इस प्लेट्स के सामने पड़ गई तो ये आपस में, ठीक है, रब कर रही है या तो टकरा गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे भी चली जाती है, दूर भी चली जाती है। आ रही है बात समझ में? तो यही प्रोसेस होती रहती है कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है इसमें, तो यहाँ का जो लिक्विड है जब हाई टेम्परेचर होने के बाद ये क्या ऊपर की ओर, जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, एक्सेस हीट होने लगता है, सनलाइट से भी वाटर जब हीट होता है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होके हल्का होके ऊपर की ओर जाने लगता है ना। सेम यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, ये लिक्विड फॉर्म में टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये क्या है, ये जो आपका मैग्मा है या लावा आप बोलो, ये क्या है ऊपर की ओर उठता है और ये क्रस्ट के टच में आता है। किसके टच में आता है? जो आपकी मेंटल से होते हुए आपकी अपर लेयर के टच में आता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे ये कूल हो जाता है और फिर नीचे डाउन हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन वेव्स, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती रहती है, ये इतना ज्यादा हीट है, यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है कि ये अप ऊपर की ओर उठता रहता है, और क्रस्ट क्या है, ये ठंडी है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कूल होने के बाद फिर नीचे की ओर आने लगता है, यही प्रोसेस होती रहती है। इसी के रीजन से आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, टकरा गई या आपस में रब कर रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एकाएक हाई एनर्जी रिलीज होती है, जिससे, जिसको कन्वेक्शन वेव्स कहते हैं, जिसके कारण जो अर्थ क्या है, शेक करने लगती है। आ रही है बात समझ में? और यही प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती है, यही प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है। वॉल्केनो के केस में क्या होता है, जहाँ पे अर्थ क्रस्ट कमजोर होती है, वीक होती है, ठीक है, जहाँ पे अर्थ क्रस्ट वीक होता है, उसका वीक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे ब्रेक अगर हो जाती है तो वहाँ से लावा पूरा बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो अब ये टाइटेनिक प्लेट समझ लो, ये प्लेट एक सिंगल प्लेट्स नहीं है, कई टाइटेनिक प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं। मूव क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये आउटर कोर जो है, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, यहाँ सारी चीजें किस फॉर्म में है बेटा, ऑल द थिंग्स आर इन द लिक्विड फॉर्म। अब इस लिक्विड के ऊपर मेंटल की मूवमेंट हो रही है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, तो ये स्लोली स्लोली प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो यही प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती हैं या आपस में रब करती हैं, जिसके रीजन से, जैसे ये प्लेट्स है, ठीक है, ऐसे रब की, हो सकता है टकरा के ये प्लेट ऊपर हो गई, ये थोड़ी नीचे हो गई, ठीक है। तो वही उससे जो हाई एनर्जी नीचे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ये जो कन्वेक्शन वेव्स जो हाई एनर्जी रिलीज होती है एकाएक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और अर्थक्वेक क्या है, ठीक है, इसी को हम लोग अर्थक्वेक करते हैं। एंड इट इज वेरी डेंजरस नेचुरल डिजास्टर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लैंड्स पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप देखते होंगे अर्थक्वेक के, कभी भी कहीं अर्थक्वेक आए देखो पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जब लैंड शेक करने लगता है तो बिग बिग बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। सड़कें हैं, रोड्स हैं, ये सब रोड्स सब क्या टूट जाते हैं, ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, ठीक है, पुल जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो, ये भी ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स पूरे टूट के गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक आने से, ठीक है। अर्थक्वेक के आने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें लैंड पे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें जब अर्थक्वेक बहुत हाई उस पर आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इज इट क्लियर? और अर्थक्वेक कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जहां पे देखो, अब फोकस का है, फोकस वो पॉइंट है जहां पे दो, ठीक है, और जहां पे ये प्लेट्स जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ठीक है, और उसके ऊपर जो एपिसेंटर, ये पॉइंट होगा आपके क्रस्ट पे, तो वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होता है,
ठीक है, तो इतना समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को एक बार रिपीट करा देंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, अर्थक्वेक कैसे आता है, इसके लिए सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, दैट इज इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल एंड क्रस्ट ऑन विच वी आर लिविंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।